In this chapter, we are going to discuss about the reproduction in lower organism, right? So basically in this chapter, we are going to discuss about the types of reproduction first. Then we will discuss the reproduction in some lower organism. Okay, importance of reproduction are created, right? See, here are some lower organism like amoeba, leishmania, paramecium. Okay, then various types of the asexual so that we will discuss in detail. Then reproduction in plants we will discuss of reproduction. Then we will discuss at the last reproduction in human. Okay, and at the last we have the birth control methods, so that also we will discuss. So this is about your chapter number 8. Let's begin with the introductory part of the chapter. So children, let me ask you one question before discussing the chapter in detail, and that is, what are the importance of reproduction? Why do an organism reproduce? Any guesses, children? Sustainability of existence on Earth. Very good, very good. Organism reproduces in order to maintain their existence. Okay, existence on the earth. Very good. ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या करना है, अपना जो रेसेस है, अपना जो एग्जिस्टेंस है, वो क्या करना है, अर्थ पर कंटिन्यू करना है. फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, स्टार्ट फ्रॉम द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया टू द हायर प्लांट्स एंड एनिमल. Each and every living organism tries to maintain their existence on the earth, and this can be only achieved by the process of reproduction, right? So let's discuss what are the different types of reproduction are there. So before this, we will discuss about the cell division in short, because that only will explain that how do an unicellular organism reproduce, right? So here is the topic first, that is, do organism create exact copies of themselves? Okay, whoever the organism is, unicellular, okay, or multicellular, do this organism produces their exact copies? So ये word यहाँ पे बहुत जरूरी है, exact, right? What do you think, children? Do organism produces their exact copies by the reproduction? Yes, children? Yes. No, right? So organism do not produces their exact copies. Then why do we talk about the identical copies of the bacteria or identical copies of an amoeba? Okay, so what is that actually? So that we will discuss in this topic. So how the process of reproduction can be achieved in unicellular organisms? Okay, those who have only single cell. So let's discuss in short. Say for example, here is one organism who is unicellular, right? So initially what happens, the organism's nucleus divides, right, to form two daughter nuclei. मतलब first step क्या है, in unicellular organism the organism divides its nucleus. उसका जो nucleus है, right, इसका क्या होता है, division. अब nucleus में क्या क्या होता है आपको पता है? nucleus में जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, देन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, मतलब ही डीएनए. और एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, राइट, न्यूक्लियस का न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, जिसमें आरएनए होंगे एंड प्रोटीन्स होंगे. अब ये जो हमारा टॉपिक है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, इसके लिए हमें पढ़ना जरूरी है अबाउट द डीएनए. ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, ये न्यूक्लिक एसिड है, एंड विच इज मेड अप ऑफ
मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, इसके स्मॉल स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं अमीनो एसिड, बराबर, स्टार्च के सब यूनिट्स होते हैं ग्लूकोज, वैसे ही डीएनए के सब यूनिट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है चिल्ड्रन, मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकते हैं या फिर वन वर्ड आंसर टाइप में भी, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज डीएनए, ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर है इसका फुल फॉर्म, इन योर एनसीईआरटी यू कैन अंडरलाइन देयर, ओके, सो इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको और हम कैसे बोल सकते हैं, इट इज जेनेटिक मटेरियल, इट इज जेनेटिक मटेरियल of all living things, of all living organism, okay, we cannot imagine life of an organism without DNA, we cannot imagine, so the life starts from DNA itself, DNA है तो life है, DNA है तो cell है, right? So when the cell divides, what exactly happens? Initially the DNA of that organism divides to form two copies of the DNA. जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है सेल के अंदर तो क्या होता है, ये डीएनए के दो डीएनए बनते हैं, सिंगल डीएनए डिवाइड्स इनटू टू डीएनए। अब ये जो डीएनए होते हैं ये आपको लगेगा कि दे आर एग्जैक्ट कॉपीज, पॉसिबिलिटी यही होनी चाहिए कि दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज, बट क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ DNA replication, during the process of DNA replication, replication मतलब to form a two copies of DNA, ये जो process है that is called DNA replication और duplication we can say, replication भी बोलते हैं duplication भी बोलते हैं, this process is not occurs with 100% accuracy, 100% एक्यूरेसी के साथ ये प्रोसेस नहीं होता है। अब 100% एक्यूरेसी मतलब क्या, समझो ये एनसीईआरटी का एक पेज है, बराबर, आपके एनसीईआरटी का ये एक पेज है, आप किसी जेरोक्स की दुकान पे जाओगे और उसको बोलोगे, वो भैया होंगे जो भी होंगे, कि इसका मुझे एक फोटो कॉपी निकाल दो, इसका एक जेरोक्स कॉपी निकाल दो, राइट? तो बंदा क्या करेगा, उसको जेरोक्स मशीन के यहाँ पे रखेगा और उसका आपको एग्जैक्ट कॉपी निकाल के देगा। तो ये हुआ विद 100% एक्यूरेसी, जैसा यहाँ पर है वैसा क्या वैसा आपके जेरोक्स कॉपी में आएगा। ओके, सो चिल्ड्रन ये हुआ विद 100% एक्यूरेसी। तो ये जो डीएनए कॉपिंग का प्रोसेस है, इट डज नॉट अकर्स विद 100% एक्यूरेसी, ओके, मतलब एग्जैक्टली होता क्या है फिर, क्यों 100% एक्यूरेसी नहीं है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और एग्जैक्टली होता क्या है, क्या चेंजेस होते हैं। तो समझो ये डीएनए है, ओके, इसका डुप्लीकेशन चल रहा है, इसके दो कॉपीज बन रहे हैं। सो यहाँ पर जब इसके सब यूनिट्स ऐड होते हैं, क्या ऐड होते हैं, डीएनए सिंथेसिस होते वक्त जो सब यूनिट्स ऐड होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स जब ऐड होते हैं तो वहां पर एरर्स आ जाते हैं। एरर्स मतलब जो वहां पे रिक्वायर्ड है वो नहीं आता है, उसके अलावा कोई और आ जाता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स चार टाइप के हैं डीएनए के लिए, ए, टी, सी एंड जी, ओके, ए, टी, सी एंड जी, इनके नाम भी है, अगर नाम पढ़ते जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा और फिर ये एकदम मतलब डीप में चला जाएगा। तो अभी सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड्स को चार लेटर से इंडिकेट करते हैं, ए, टी, सी एंड जी। तो ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं स्टूडेंट, इनमें आपस में बॉन्डिंग होती है कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से कनेक्टेड है, इस तरीके से दे हैव द बॉन्ड्स इन बिटवीन देम, ओके, एंड दिस बॉन्ड्स आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स है ये बॉन्ड्स है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये जो बॉन्डिंग होती है ये फिक्स है, मतलब ए जो है, ए का हमेशा बॉन्डिंग होता है टी से विथ टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, okay, A always binds with T by two hydrogen bonds and C always binds with a G by three hydrogen bonds,
तो यहाँ पे समझो A है, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर वाले स्ट्रैंड पे यहाँ पर होगा T, यहाँ पर अगर G होगा तो इधर क्या होगा, बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड C। तो ऐसा यहाँ पे सीक्वेंस होता है, ठीक है, तो ये सीक्वेंस फिक्स होता है। अब ये सीक्वेंस में जब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं और उस वक्त अगर रिक्वायर्ड सीक्वेंस से कुछ अलग सीक्वेंस बन जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एरर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, एरर्स। मतलब वहां पे जो पेरेंट के सीक्वेंस थे, तो पेरेंट के सेम सीक्वेंस में डॉटर डीएनए के सेम सीक्वेंस नहीं आ रहे, कुछ तो भी वहां पे चेंजेस हो रहे। इवन सिंगल अल्फाबेट का भी चेंज अगर वहां पे हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड डीएनए कॉपिंग एरर्स। बराबर। तो जब डीएनए के कॉपीज होते हैं एक डीएनए से, जब 2 डीएनए बनते हैं, तो ये एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनते हैं, वहां पर कुछ एरर्स आ जाते हैं। और आपको मैंने बता दिया कि एरर्स मतलब क्या, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ओके, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, and due to these errors only the daughter cells are not same like a parent cell, they are not same। या फिर हम बोल सकते हैं कि yes they are same but they are not identical। ये आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल कब होंगे, जब वो 100% एग्जैक्ट कॉपीज है, तब वो उसको हम बोलेंगे कि yes they are आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। लेकिन ये एरर्स आ जाने की वजह से, ये क्या होता है, डीएनए कॉपिंग की प्रोसेस में एरर्स आ जाने की वजह से दे आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर सेम। ओके, बट दे आर सेम। अब देखो खुद को इमेजिन कर लो। ओके, माई सेल्फ, ओके, यू इमेजिन योर सेल्फ एंड कंपेयर विथ योर पेरेंट। ओके, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, राइट। समझो आपके यहाँ पे मदर है, समझो यहाँ पे फादर है। कंपेयर योर सेल्फ विद देम। कुछ ना कुछ आपका सेम होगा, ठीक है। नोज का जो शेप है, आपके फेस का जो जो शेप है, या तो फिर आपके हेयर्स का जो स्ट्रक्चर है, कर्ली हेयर से, स्ट्रेट हेयर से, बराबर। तो बहुत सारी हमारी जो चीजें हैं वो हमारे पेरेंट्स से मैच करती है। क्यों? बिकॉज वी आर फॉर्म फ्रॉम देम, राइट। और उनके ही डीएनए हमारे सेल के अंदर है, बराबर। तो हम उनके जैसे तो है, राइट, उनके जैसे हम दिखते हैं, बट वी आर नॉट आइडेंटिकल। वी आर नॉट identical, we are same but we are not identical। and why this is so? This is due to the 2 DNAs are combined from 2 various parents। समझो एक मदर है, एक फादर है, दोनों से अलग अलग डीएनए आए हैं, इसलिए हमारा जो कॉम्बिनेशन है उसमें एक डीएनए का फ्रैगमेंट मदर से है, एक डीएनए का फ्रैगमेंट जो है वो फादर से है, इसीलिए हमारे अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट व्हाट अबाउट यूनिसेल्युलर? वो तो सिंगल सेल ही बना रहा है ना, 2 अलग अलग सेल्स। द सिंगल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 cells, right? But then too, these 2 cells are not identical। ये दोनों सेल भी आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं है? Because the DNA copying process not occurs with 100% accuracy। The process of DNA copying does not occur with 100% accuracy, and that is the reason answer for this question is no। Okay, do organisms create exact copies of themselves? So no। And how will you justify the statement for the answer no? Because during the process of DNA copying, during the process of DNA copying, DNA does not produce its exact copies. Some errors occurs in that, and hence the DNA copying is not 100%. It does not occurs with 100% accuracy, and that is the reason organisms do not produces their exact copies. They are similar, but they are not identical। Okay, the copies of the DNA are same but they are not identical। Okay, so I hope this is clear for you children। Let's go for the next topic।
ओके। अब यहाँ पर क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस, डिफरेंसेस। ओके, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया कि ये सेल है, ठीक है, उसका एक डीएनए है, ये डिवाइड हो रहा है दो नए सेल्स बनाने के लिए, राइट। तो ये प्रोसेस हमेशा 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है ये 100% एक्यूरेसी के साथ? क्यों नेचर ने ऐसा बनाया है कि वहां पर कुछ वेरिएशंस क्रिएट हो, वहां पर कुछ चेंजेस हो? क्यों ऐसे होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। तो ऐसा क्यों होता है? डीएनए कॉपिंग 100% एक्यूरेसी के साथ क्यों नहीं हो रही है? इन ऑर्डर टू क्रिएट वेरिएशंस। क्या क्रिएट करने हैं नेचर को? नेचर को क्रिएट करने हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस मतलब डिफरेंसेस, डिफरेंसेस क्रिएट करने। क्यों करने हैं फिर ये डिफरेंसेस? दिस डिफरेंसेस आर वेरी नेसेसरी टू मेंटेन existence, to maintain existence of living organism, living organism on the earth। क्या करना है? ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनका एग्जिस्टेंस मेंटेन करना है। और ये एग्जिस्टेंस किस वजह से मेंटेन होता है? व्हाई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स बेटर ऑन द अर्थ? इट इज ड्यू टू द वेरिएशंस। ओके, देखो अर्थ का जो क्लाइमेट है, ठीक है, ये चेंज होते रहता है। अभी आप अगर पुराने क्लाइमेट से कंपेयर करोगे, जब लाइफ स्टार्ट हुआ था तो वहां पर पोल्यूशन नहीं था, टेम्परेचर एकदम नॉर्मल था, राइट। अभी आप देखो ग्रेजुअली द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली इट इज इंक्रीजिंग। सो ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, इसमें ऑर्गेनिज्म को क्या करना है? ऑर्गेनिज्म को खुद को क्या करना है? अडप्ट। क्या करना है? अडप्ट। अडप्ट मतलब क्या करना है? एडजस्ट। So every organism try to adjust with the change in a climatic condition. And for this adjustment only, the variations in the DNA are necessary. DNA में changes होना बहुत जरूरी है। अगर DNA change होता है तो organism जो है ये particular niches में survive कर सकता है। देखो यहाँ पे क्या word है? niches। niches का मतलब क्या? area। सो उसमें जो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने डीएनए में वेरिएशंस क्रिएट करता है। एंड नेचुरली इट हैपेंस। ऐसा नहीं कि मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे अभी मेरे में वेरिएशंस क्रिएट करने हैं तो मैं मेरे में वेरिएशंस क्रिएट करूंगी। नो, हैपेंस नेचुरली। इट हैपेंस ड्यू टू द चेंज इन अ क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे जैसे हमारे सराउंडिंग चेंज होती है, ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में ऑटोमेटिकली वेरिएशंस होते हैं। ये नेचर का रूल है। और ये क्यों होता है? इट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर ऑन द अर्थ। ओके, सो वेरिएशंस आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म बेटर ऑन द अर्थ। बराबर। तो ये जो आपका ये पैराग्राफ है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आपको बताती हूँ। For example, there is a population of bacteria in a particular area. एक particular, ठीक है। अब यहाँ का टेम्परेचर समझो 37 डिग्री सेल्सियस है, राइट, 37 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ? ड्यू टू सडन चेंज इन अ क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ का टेम्परेचर हो गया डिग्री सेल्सियस, राइट। अब क्या होगा? ड्यू टू सच अ चेंज इन अ क्लाइमेटिक कंडीशन, द बैक्टीरिया विल ट्राई टू अडॉप्ट इटसेल्फ। ये क्या करेगा? बैक्टीरिया खुद को इस चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन से अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। अब ये जो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है, इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो अडॉप्ट कर लेंगे, जो अपने डीएनए में चेंजेस क्रिएट करेंगे और खुद को अडॉप्ट कर लेंगे। या फिर उनके बॉडी में कुछ तो भी ऐसे चेंजेस करेंगे या फिर प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप करेंगे जिसकी वजह से
ये चेंज इन अ टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। अब ये चेंजेस क्यों हुए? इन ऑर्डर टू सर्वाइव बेटर। अब इसमें से कुछ बैक्टीरिया अगर चेंजेस अपने बॉडी में नहीं कर पाए तो क्या होगा? दे विल गेट किल। वो क्या हो जाएंगे? वो किल हो जाएंगे ड्यू टू चेंज इन अ क्लाइमेटिक कंडीशन। बराबर? या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जो डायनासोर्स थे उनका पॉपुलेशन खत्म हो गया, ठीक है, दैट एग्री कि हम एग्री करते हैं कि उसकी वजह से वो सब जल गया, वो खत्म हो गया सब, राइट? बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है कि वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए, चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन से वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए, और उनका जो स्पीसीज है, उनका जो स्पीसीज है मतलब उनका जो जाति है, जात हम जिसको बोलते हैं, वैरायटी, वो कंप्लीटली क्या हो गया? वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया। अभी वो अर्थ पे हमको देखने को भी नहीं मिलता। जैसे कि डोडो है, मैमोथ है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? बिकॉज they couldn't adapt themselves to the change in the climatic conditions, right? And that is the reason, children, the variations are necessary in order to adapt to the change in the climatic condition, so that the particular species can survive better on the earth. So I hope, children, you understood the importance of variation, that why variations are necessary. The simple answer is what? To survive better on the earth. Okay, let's go for the next topic, children. Right, so from here actually your interesting topic starts, and that is the topic 8.2, modes of reproduction. So I want you all to note down heading in your notebook, children. That is the modes of reproduction, and make a 2 columns in your notebook. Okay, make a 2 column. So basically there are 2 modes of reproduction: asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction. Okay, asexual and sexual. So इसके बारे में differences हम study करेंगे, then we will go for the types in a detail. So asexual means what? Only one parent is involved, only one individual is involved in this, single parent लगता है, and here both the parents are required. Okay, both the parents are required. Okay, asexual reproduction can occur by single parent only, but for the sexual reproduction the pair of the parent is required, right? Second point, reproduction gives out identical copies. हम देखते हैं कि identical basically बनता नहीं है due to some errors, but हमको ऐसे ही लिखना है, it produces identical copies, identical copies. और यहाँ पे लिखो sexual reproduction में, sexual reproduction gives out variations, it produces variations. मतलब अगर 2 पेरेंट्स लग रहे हैं तो एक पेरेंट का डीएनए कुछ अलग होगा, दूसरे पेरेंट का डीएनए कुछ अलग होगा, राइट? एंड दिस 2 डीएनए व्हेन कंबाइंस इट लीड्स टू वेरिएशंस. जब 2 डीएनए के फीचर्स कंबाइन हो जाते हैं तो वहां पे थर्ड नया फीचर डेवलप होता है. कंपेयर करो खुद को विथ योर पेरेंट. आपके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप में है, मदर से कुछ है, फादर से कुछ है, बट ऐसा नहीं है कि आप आइदर ऑफ किसी पेरेंट से एग्जैक्टली मैच करते हैं कि भाई पता ही नहीं चलेगा कि फादर कौन है और बच्चा कौन है, हाइट भी सेम है, पूरा लुक सेम है. नहीं, पॉसिबल नहीं है, कुछ तो भी वेरिएशंस है. ओके, एंड दिस वेरिएशंस आर क्रिएटेड ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट?
थर्ड पॉइंट नोट करो, those organisms who reproduce by, note down, those organisms who reproduce by asexual reproduction have lifespan, have short lifespan. lifespan कैसा होता है इनका? short है. Those who reproduce by sexual means, their lifespan is long. Okay, they have long lifespan. Fourth difference, note down children. The process consumes less energy. ये जो प्रोसेस है asexual reproduction का, it consumes less energy. Is itself a process of reproduction, a cell division. Just repeat. Asexually reproducing organism Ma'am, please repeat. मैम प्लीज रिपीट. क्या होता है उनका प्रोसेस ऑफ आवाज अटक रही है. मैम फोर्थ पॉइंट. Voice is breaking. only in case of, but only in case of, you check your network connection, but only in case of unicellular organism. Okay, the process of reproduction, that is asexual, consumes less energy, and cell division is itself a process of reproduction in unicellular organism. Okay, इस प्रोसेस के लिए स्टूडेंट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ओके, यूनिसेलुलर, इनमें क्या है? सेल डिवीजन का ही प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. इधर नोट करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट कंज्यूम्स lots of energy. It consumes lots of energy. Okay, sexual reproduction का process lengthy भी है, okay, and it consumes lots of energy. Note down fifth point. Example यहाँ पे नोट करो, binary fission, regeneration, fragmentation, okay, vegetative propagation, etc. are the examples of asexual reproduction. And in sexual reproduction, note down example, only one process is there. Only one process is there where two parents
two parents fuses their body, where two parents, or you can say where two parents joins their body or fuses their body, like this. All right. So children, I hope you understood these three concepts that we learned today. And what is that? Today we learn the introductory part of the chapter 8, where we discuss the need of process of reproduction. Second topic that we learn that do an organism produces exact copies of themselves? And its answer is no, because the DNA copying will not occur with 100% accuracy. Then the next topic we learn the importance of variation. The variations are necessary for the better survival of a particular species on the earth. And the next topic that we discuss today is the modes of reproduction, that is asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction in a difference form. And in that we have written 5 differences. From tomorrow onwards, we will discuss the type of asexual reproduction in detail. Okay. Let's discuss some doubt from the student. What are copies? Blueprints का मतलब क्या होता है? Copies. Okay. Any doubt, children? No, ma'am. Okay. Do you understood today's concept clearly? Yes, miss. Okay. If you have any doubt, you can drop me a message in the chat box.